And there are the visuals coming out of Gaddafi Stadium, Lahore. It was another wet evening in Lahore. Unfortunately, the game got washed away. It was going to be a good contest. It was looking like the Australian batting had a grip on this one. But we're going to talk about it nonetheless. And that's how the Afghanistan trip has ended at the ICC Champions Trophy. I'm Fakhar Anam and you are watching the DP World Dressing Room. This is 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. And the news out of Gaddafi Stadium is, unfortunately, that the match has been abandoned and we could have had a really interesting game. Maybe, maybe not, but it looked like the Aussies had a good control on it. To talk all about it, I've got four fantastic gentlemen here in the dressing room with me. First up, I've got, he's represented India, off-spin bowling, pinch hitter, and a fashion icon of the dressing room. Ladies and gentlemen, Nikhil Chopra. Nikhil, good evening and welcome. Thank you so much. Boy, smile. Thank you so much. Yes. You're looking like a boy, right? Absolutely. Fantastic. Next up, the legend himself, toe-crushing, batsman terrorizing, golf swinging, and the man himself, Waqar Younis. Vicky bhai, welcome. Hello, sir. Hello. How always are a pleasure, always you, an sir. honor. Thank you. Next up, cricket royalty himself, one of the finest that has graced cricket grounds around the world. I've got the Sultan of Swing, the undisputed Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum, and welcome back, Wasim. Assalamu alaikum, Always everyone. good to see you. Right on. Next up, ladies and gentlemen, I've got another fantastic person who's been gracing us throughout this journey of the DP World Dressing Room. He represented India, got them a lot of glory, batted really well, and has been batting really well for the DP World Dressing Room. We've got Mr. Ajay Jadeja. Ajay, welcome once more time. Thank you very much. Good evening, namaste, and welcome. Thank you for having me. And this is how the match ended up. Here's the match summary. This is Afghanistan winning the toss again today. Interestingly, did not look like a 273 is a total they will achieve, but they did. Indeed, and we're going to talk all about that. Australia, however, came back really strong out of the gates. And had this game continued, I'm afraid Australia would have dominated Afghanistan because this was not like the other day that we saw. However, the match washed away, no results. And let's take a look at the points table now, because now we have Australia that have now qualified for the semi-finals. So they've gone. Now, the question that remains is who is on number 1 position and 2 position and who plays who in the semi-finals after the decision. Now, there are mathematical scenarios that Afghanistan can still qualify or something like that, but they're just mathematical scenarios. It's like almost like England has to defeat South Africa with 207 something runs, or something like that. But, you know, as I said, mathematical scenarios. All right, gentlemen, let's get cracking firstly. Ajay, you must be proud because जिस तरह आज ball move कर रहा था in the first innings and how those guys, the Afghan batters, actually fought their way out after, you know, losing wickets to come to 270 plus target. Yeah, a bit of a mixed feeling, I would say, Yeah. you know, because I'm a little emotional with this teams and critical as well. Yes, very proud to have they started because I think the toughest part was the first 10 overs. You know, when the ball seemed around और हमारे को धोखा हो गया. You know, वो दोनों ने जो पिच रिपोर्ट की थी वो हमारे को बिल्कुल धोखा हो गया. बेल्टर. बिल्कुल कौन सा अलग. बेल्टर था? वो किसकी बेल्ट थी? मैं वो जानना चाहता हूँ. कुछ पता है आपको? नहीं, वो पता नहीं चला क्या हुआ क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर तो जरूर था. वो पिच वैसी नहीं थी जैसी वो बता रहे थे. तो उस लिहाज में वहां पे तो ऑलमोस्ट 60 पे पहुंच गए थे 10 ओवर में. लेकिन वहां से फिर जो हुआ आखिर के एंड तक सिर्फ आए जो एंड में अजमत ने अकेले किया वो थोड़ा प्राउड फीलिंग वाला था. लेकिन बीच में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा. आई थिंक इफ यू आस्क देम themselves they'll probably say that. And there you are, 54 for 1 was a good start for Afghanistan. I thought what they would have wanted. But फिर जो उसके बाद का पीरियड है ना 11 से लेके 26 तक और या 40 तक वहां पे वो I hope they are disappointed because they are a much better side than this. Yeah. And that is why I feel. But जो लास्ट के फिर वो 10 ओवर में वो रिकवरी की उसके बावजूद I'm happy about that the belief is still there. Yeah. Wasim, Siddiq played really well. मैं पहले सीट ठीक कर ला. Welcome to the show. Siddiq played really well. Yeah, he did. Yeah. उसको देखा नहीं था हमने, but बड़ा impress किया उसने और बिल्कुल जैसे इसने कहा कि हम तो पिच रिपोर्ट पे भी रिलाई करते हैं ना, थोड़ा यहाँ बैठे हैं, थोड़ा दूर बैठे हैं. पर थोड़ी सी गलत पिच रिपोर्ट हो गई. थोड़ी सी? जैसे इसने कहा ना कि हमने तुमको खजूर दी, तुमने हमको धोखा दिया. धोखा नहीं होया, धोखा है. But yeah, they in the end, like you said, they went up to 270. This young boy played really well. I was watching a bit.
उसकी इनिंग जिस तरीके से रन बॉल उसने 50 किया. Yeah. सदीक Yes. was outstanding because मुश्किल टाइम जरूर था लेकिन उसके साथ ये लगे रहे और you know the shot making that he has I think is just a boon for Afghanistan. Every young player who's coming in is pushing players from the past and a lot of them would have to start thinking, you know, should we give way to these young guys coming through? And I feel Afghanistan is on the right track in that way. Absolutely. They've been disappointed with what's happened as a result, but this is a big gain for Afghanistan. Yeah. He looks like a fabulous player. Nee, but if I could just add here, getting 273 Yeah. with the kind of pitch that they had to deal with, वो pitch report तो आ गई गलत जिस तरह वसीम भाई ने कहा, Yeah. लेकिन वो जितना मॉइस्चर था जो कर रही थी उसके बावजूद भी they actually somehow managed to go to 273. That should be something because I know other teams that would probably disappear for 200. Yeah, but then the other teams, you know where they are ending up. I'm looking Yeah. at this team to become the world's best team in a while. Yeah. So if they're thinking that way, then they will look at it the way I'm looking. But otherwise, if you want to be just content with what you've got, you were lucky with that start because वो 54 जो आप Yeah. देख रहे हैं उसमें से करीबन 30 तो वाइड और लेग बाई और ये वो Extra मिले से ball. तो मुश्किल जब आपको निकल गया और आपकी वजह से नहीं वैसे निकल गया जब आपको कंट्रोल लेना था वहां पे मैं थोड़ा वहाँ पे सा आप प्रोटेक्ट कर रहे थे. एक चीज भी बड़ी अच्छा है कि maybe some of the seniors in the Afghanistan team must be thinking maybe should we make way for the new generation, for the new players to come in. I'm actually very curious, Waqar, where is Afghanistan getting these new young players from? They don't have a very, I don't know of their first class cricket. Where are they getting them? Where is there club cricket in Afghanistan that we don't know of? Where is this all happening? Look, honestly, I don't know. I mean, Jaddu probably would know कि उनका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है भी या नहीं भी है और ये कहाँ से आते हैं. बट प्रीवियस जो जनरेशन है या अभी भी जो खेल भी रहे हैं इनमें से बहुत सारे जो लड़के हैं वो पेशावर में ग्रो अप हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग वहाँ पे एकेडमीज़ में बहुत सारे ये जो अफगान लड़के हैं they played a lot of cricket there. That's why they know a lot of Peshawar boys also. But yeah, there are plenty of positives. I mean, they should be very ठीक है proud, आप yeah. हार गए हैं, but I think they will go home proudly. What they have achieved, beating Australia, would they beat England. They beat England. Sorry, they beat England and beat them convincingly. So I think there are so many. I really like this Sadiq guy. I think he's got. उस दिन मैं और जाट बात कर रहे थे कि यार मैंने इसको देखा नहीं है पहली दफ़ा और आते ही आउट भी हो गया. So we were not sure कि if he is good enough or not good enough. But आज उसने जिस तरीके का उसका बैट फ्लो दिख रहा था, जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, that is so much positive for Afghanistan. Yeah. Zadran today, it looked like he was trying to stay away from the strike, especially when the lefties were operating. Yeah, I mean, they bowled well, but I thought कि Australia, they had that opportunity, blessing in disguise, नया बॉल हाथ में जिस तरीके से विकेट वो हरकत कर रहा था, gave too many runs. Yeah, Zadran, unfortunate, 177 रन बनाने के बाद he would have come in to this innings with great amount of confidence, but you get runs sometimes, you don't get runs sometimes. But the good thing is, if you look at the previous innings, if you're looking to identify or put a stigma on a particular batsman, एक बैट्समैन को जब स्टार्ट मिलता है ना, उस स्टार्ट को वो कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, that to me is very important. The conversion of that start. That is important कि भाई I take on that responsibility and I want to take it. But आज जिस तरीके से वो नया बॉल चल रहा था, you got to say कि पहले 10 ओवर में medium pacers were ruling the roost. They were. So as a batsman, Jaddu, I'm just asking a question like हमें जो stat मिला उसमें ये लिखा है कि लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ अजमत का जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 21 का है. तो जब आप एज अ बैट्समैन जाते हो बैटिंग करने, आपके जेहन में ये चीज़ें होती हैं कि यार ये लेफ्ट आर्मर्स हैं, मेरा स्ट्राइक रेट इनके खिलाफ कम है. मेरा नहीं ख्याल पड़ता होगा फर्क, क्या आपके होता है बैक ऑफ योर माइंड? आई थिंक पहले नहीं होता था लेकिन बट अब जो है ये जो डेटा का इतना इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि कोचेज हैं, डेटा वाले लोग होते हैं, तो आपको वो फीड करते हैं, अच्छी भी बुरी भी आप उसके कैसे लेते हैं. आई थिंक वजह उसकी शायद ये हो सकती है क्योंकि अजमत को आप देखें तो वो है ना हाथ अपने आप को दूर करता है गेंद से, उसको रूम चाहिए होता है. तो जब लेफ्ट आर्मर आ गया तो ऑलमोस्ट वो एंगल ही चेंज हो गया, तो उनको वो शायद इसलिए शायद स्ट्रगल करता है. But that innings by him was. Let's take a look at that. Let's play it on your screens, and then you can take us through with it, Ajay. This is the Omar Zai innings that was there today. Yeah, he took his own time when he came in because wickets गिर गई थी. वो आया तब एक गिरी, उसके सामने दूसरी गिर गई. इसके हाथ इतने अच्छे खुलते हैं क्योंकि रूम मिलता है, इसलिए ये शॉटें खेल पाता है ना.
क्योंकि किसी को बड़ी शॉटें मारने के लिए हाथ खोलना पड़ता है। आप ज्यादातर शॉट जो उसकी देखेंगे तो पैर दूर जाता है बॉल से, उसको तब वो हाथ खोलने का मौका मिलता है। तो जैसे ही लेफ्टी आता है तो आपको पैर और दूर लेके जाना पड़ेगा ना, तो जितना क्रैम्प होता है, पिछला मैच भी आप याद करें, शॉर्ट बॉल जो थी वो इधर नहीं थी, इधर कोई नहीं, इधर खेलने गया, क्योंकि ये वाला पैर जब उसका क्रॉस जाता है तो वो टाइट हो जाता है, फिर उसके हाथ नहीं खुलते, तो शॉट मेकिंग नहीं होती। बट हर एक का अंदाज अलग होता है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है यहाँ पे उसकी, लेकिन उसको ओवरकम कितनी खूबसूरती से करता है। अच्छी चीज इसकी है कि आप देखें ना कि जब जरूरत थी एक अंदाज में खेलता चला गया, क्योंकि आजकल नहीं तो हम सब प्लेयरों का देखते हैं कि यार ये ऐसे खेलता है, ये ऐसे खेलता है, बट सिचुएशन चेंज होती है, आपको चेंज होना चाहिए, वो जो कि उसने करके दिखाया। अजय भाई, जिस तरीके से सफेद बॉल में बैटिंग भी कर रहे थे, जो हाथ आप कह रहे हो खुल रहे, बॉडी बॉल से दूर रहती है, जगह बनाता है। एक टाइम था जब वो छक्के मार रहे थे, बाउंड्रीज मार रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर्स के ऊपर मारा, हाँ, स्लोअर बॉल, वो शॉट था, फिर बॉडी पे क्रैम्प करने को देखा तो फिर मिड विकेट पे छक्का मारा। सो ही इज गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ टेरिफिक बैट्समैन। सफेद बॉल की क्रिकेट और एक कमाल का ऑलराउंडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि आप एज ए बॉलर इनको कहीं टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता है ना, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई तो आप होगी वीकनेस, बट और है, लास्ट ईयर आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है। इसके आने से मैं तो सवेरे भी बोला था कि इस अफगानिस्तान टीम की जो ये ऑलवेज ग्रोथ होती चली गई, इसमें कोई डाउट नहीं, बट रियल टर्न अराउंड देखें तो इनकी ये जब से खेलने लगा है, अब तो ये फिर पीछे हो गया है। जब से ये आगे खेलता था पिछले वर्ल्ड कप में 2023 वाले में, आई थिंक 90 की एवरेज से इसने रन बनाए, आउट ही नहीं हुआ, जब जरूरत पड़ी खेलता रहा। तो बल्लेबाजी तो थी, बट अब गेंदबाजी भी बेहतर होती चली तो है। यू थिंक कि इसको, आई मीन, अगर ये बैटर इतना अच्छा है तो आप उसको बॉलिंग के उसमें से निकाल ले एंड मेक हिम बैट एट नंबर 3 और 4, क्योंकि अगर इतनी अच्छी उसमें है तो डू यू वांट टू वेस्ट हिम बाय जस्ट मेकिंग हिम एन ऑलराउंडर? अगर इतनी क्लास है उसकी बैटिंग में, क्या यू थिंक नहीं यार ये ऐसा है कि हम इसको 5 या 6 पे खिलाते हैं, साथ इससे 8-10 ओवर भी निकलते हैं? नहीं, आई थिंक अगर आप बैटिंग करते भी हैं 4 पे से, मान लेंगे 4 पे खिलाते हो, तो गेंदबाजी में उसका इफेक्ट होना नहीं चाहिए, जो मैं मानता हूँ। आपके पास अगर दोनों स्किल हैं, आप ब्लेस्ड हैं। जैक कैलिस 3 नंबर खेलता था यार, और गेंदबाजी भी करता था, तो ये वहां सोचे। और मेरा इसके साथ हमेशा यही मानना रहा है, ये अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर बनाने की सोचना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें वो बात है। दुनिया में कितने आज की डेट में, कैलिस तो छोड़ गया, एक हार्दिक पांड्या मुझे ध्यान में आता है, उसकी बेचारे की बैटिंग ही नहीं आती, क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है, बैटिंग करेगा तो रन बनाएगा ना। तो उसी तरह आई थिंक इसमें एबिलिटी है, दोनों फिट है, यंग है, अभी तो कर सकता है। All right, folks, with that, we're going to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anand. This is 10 Sports. You're watching our continued coverage of the ICC Champions Trophy. News out of Gaddafi Stadium, Lahore, is that the Afghanistan-Australia game has been abandoned. Now, Australia qualified for the semis. We're going to find out what happens in this group for the next semi-finals. With me in the dressing room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. We were talking about Afghanistan before the break, but it's time to talk about that explosive start by Australia, Waqar. Expected था नहीं? है ना? They could have, both of them could have been back in the heart very early in the game. Yeah. Lekin that's the way they play. I was very, very, pleased to say the way they were playing. Travis ने पिछले मैच में रन नहीं किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा इस पे शक था कि यार अगर ये ना चला तो ये प्रेशर है, क्योंकि बाकी जितने प्लेयर हैं वो थोड़े यंग हैं। इसकी क्या बात है, आई मीन टॉल एंड फुल जबरदस्त। ये वो पहले वाले कैच की जो मैं बात कर रहा हूँ, हेड्स का जो पहला कैच गिरा था, और ये जो टांग पे, आई मीन इसको सीधा आप बॉल नहीं कर सकते इनको, बल्कि दोनों को विकेट में जो ही आप बॉल करेंगे, दे विल टेक चांसेस, दैट इज टू लीव दैट टू देम, कि दे विल नॉट स्पेयर यू इफ यू बॉल अ लिटिल शॉर्ट। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन पिच पे गेंद आता है, लाहौर के पिच पे भी गेंद आता है, और उन्होंने उसका पूरा So when we talk about intent, we talk about intent. अब इंटेंट की बात करें तो ट्रेवल्स हेड को देखें, कैच 6 पे इनका ड्रॉप हुआ, अगली गेंद पे इन्होंने चक्का मार, हिट अ सिक्सर, चक्का मारो, चक्का।
So that's intent. Yeah. That's what we talk about when we talk about intent. क्या होना चाहिए कि go for it, and that's what Travis Head का जो intent है, उसका strike rate पहले 10 ओवरों में दुनिया में सबसे best है. 122 strike rate in first 10 overs. It's the world best right now. So talk about intent. Any youngster is watching, he should understand कि जब हम intent की बात करते हैं, क्या करते हैं? Drop catch के अब उसने रोका नहीं है, ठक्का नहीं लगाया कि मैं सिंगल करके चला जाऊँ. बॉल मिला उसको, अपनी गेम पर आया. वसीम भाई, अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अब इसमें आप अगली टीम के बॉलर या बैटर को बाहर करने की करते हैं गेम. गेम से बाहर करो, उसको इतना अंडर प्रेशर कर दो अर्ली ऑन कि वो उसको अपनी पड़ जाए, बजाय इसके कि वो टीम की उसको फिक्र रहे. राइट. क्योंकि जो ही एज अ बॉलर आई एम टॉकिंग कि अगर मुझे एक जगह से बीच में से, जैसे इसने अभी देख रहे हैं ट्रेविस हेड ने बीच वाले विकेटों वाले बॉलों को उसने 2 पुल मार दिया. ये सबसे मेरा अच्छा बॉल है और उस पर उसने चौका मार दिया, छक्का मार दिया. Where am I gonna go? और फिर एक नहीं मारा. RRS पर गिलक्रिस्ट और जयसूर्या. गिलक्रिस्ट से शुरू किया था और जयसूर्या ने किया, कालू ने अच्छे बॉलों पे मारा. You know, as a bowler, we were like, okay, अगला बॉल अब क्या करना है? बजाय के विकेट लेने जाएं कि बचना कैसे है, सिंगल कैसे, इनको सिंगल दे दें, किस तरह दूसरा बैटर सामने आ जाए. तो अब उसमें इन्होंने, अब मॉडर्न डे क्रिकेटर्स जो हैं, मॉडर्न डे बॉयज जो हैं, उन्होंने क्या किया, उसको ऐड ऑन कर दिया चीजें. उसमें उस वक्त तो शायद जयसूर्या एक मारता था या गिलक्रिस्ट एक मारता था, तो फिर कोशिश करते थे लेकिन लगती नहीं थी. आजकल की क्रिकेट में 2 नहीं 3 मार दो. अगर 3 चौके लगते हैं या 2 छक्के लगते हैं तो मार के इसको इतना अंडर प्रेशर कर दो कि उसको अपने पूरे स्पेल की फिक्र पड़ जाए, बजाय इसके कि वो सिर्फ उस ओवर की फिक्र करे. There's a method to the madness. I thought कि जब आप रन चेज करने आए 273, I think they gauged how can Afghanistan get back into the game. आप पहले 10 ओवर में 90 रन बोर्ड पे लगा देते हैं. That allows their frontline spinners कि जो आने वाला बैट्समैन है ना, उसको टाइम मिल जाएगा. जो पाजी कह रहे थे, जो so ahead of the game. So आपने अगर चांस लेना है against any bowler, you will take it in the power play because 2 ही खिलाड़ी जो है वो 30 यार्ड के दायरे के बाहर है, and you upset the rhythm. फरूकी के पहला बॉल जो ट्रेविस हेड को गया था, टांग पे इतना स्विंग हुआ था, जोर से वो जो अपील हुई थी, लेकिन उसके बाद वो 2 चौके मारे, उसके बाद फरूकी आया ही नहीं आगे. फोर्स टू बॉल पीछे थोड़ा. ये एक और चीज नोटिस करे कि जो आगे गेंद किया है तो उन्होंने नीचे मारा है, जो ही पीछे किया है तो उन्होंने हवा का इस्तेमाल किया है. यार ये दायरे के अंदर है ना, तो मैं ऊपर से, इतनी जगह खाली है, मैं ऊपर से मारता हूँ. तो 2 जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, एक राशिद जो कि दुनिया का बेहतरीन फील्डर है, मिस जज हो गया, हो जाता है टाइम, तो थोड़ा तेज चला गया. व्हेन ही रीच देयर ही रियलाइज के कैच उसके पास है तो वो ड्रॉप हो गया. ये देखिए, इस कैच की बात कर रहे हैं. और ये ट्रेविस हेड जो कि दुनिया का डेंजरस स्विंग प्लेयर है, ही वाज अपसेट ऑब्वियसली, बीइंग द मेन मैन, बीइंग द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड. एंड देन ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे ये तेज गया और थोड़ा पहले चला गया, मेरा ख्याल है बॉल से रॉन्ग फुटेड हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग फुटेड भी हो गया, बिकॉज थोड़ा फास्ट गया, पेस का आइडिया नहीं हुआ. कुड भी एंगल भी ऐसा था कि वो ऐसे भी नहीं पकड़ सके, ऐसे भी नहीं. और ये दूसरा कैच था जदू. आई थिंक ये तो गोदी में ही आया था, लेकिन ये अजमत का बाकी, ये कौन अजमत ही, ये एक ओवर के लिए 12th मैन आया, बाहर से आया था. ये कई बार होता है ना, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं, 12th मैन है यार, खेल नहीं रहे, आप बैठे होते हैं, सडनली कोई बाहर आ जाता है, आप जाते हैं गेम में तो आप इन्वॉल्व नहीं होते. तो एज अ फील्डर लाइट का भी थोड़ा यूज टू होना पड़ता है अंदर, तो उसका भी फर्क पड़ जाता है. आई थिंक राशिद वाला जो था उसमें ये हुआ, उसे लगा कि शायद और जोर से आ रही है, तो वो ज्यादा जगह कवर करने गया स्पीड से, वो आई नहीं. और ये तरीका भी गलत था, इसको ऐसे पकड़ा, उसके हाथों की लगी. बट ये तो बट जैसे वसीम भाई ने कहा, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स, इस टीम की जान है वो. एनर्जी वो लेके आता है, तो उसको बहुत उस टाइम डिसअपॉइंट हुआ होगा इसमें. गलती से मिस्टेक होगी. That's a good one. And with that, it's time to take a look at the Follow Wickets, brought to you by the Tamasha app. जितना शुरू में गेंद स्विंग हो रहा था ना, इससे ज्यादा विकेट गिरनी चाहिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये थोड़ा लूज शॉट खेला था, बाहर था, ये अनलकी मैं कहूँगा थोड़ा सा. ये सीधा कैच, आई मीन द गाय प्लेड रियली रियली वेल. ये फोर्स किया, इस पे प्रेशर बिल्ट हो रहा था, यहाँ पर रन्स नहीं निकल रहे थे. और ये रन आउट देखिए, ये बॉलर ने कितना स्मार्टली, उसने कहा कि मुझे स्टंप्स पे पहुंचना, जो कि नॉर्मली बहुत कम दिखता है. देखिए उसे कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपने सिचुएशन अवेयरनेस आपने खुद सीखनी है. ये आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं सिखा सकते. ये आपको स्कूल में बच्चों को ये लोग इंडल्ज करते हैं कि कम बिहाइंड द स्टंप, डज नॉट मैटर हु यू आर. और जो दोनों तरफ फील्डर होते हैं ना,
स्क्वायर ऑफ द विकेट, Yeah. आप इनको कभी भी देख लीजिएगा, जो ही बॉल जाएगा ना उस तरफ बाहर जाएगा, दे विल ऑल स्टार्ट रनिंग। कि एक तो हुआ ना कि हमने गेंद उठा के फेंकना है, और एक है फिर आपने उसको पीछे से बैकअप करना है। सो एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन द गेम। Yeah. Follow wickets by the Tamasha app. कभी कभार हमसे भी कैच ड्रॉप हो जाते हैं। केड़ा कभी 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 किसी ने नहीं पकड़ा। किस What कैच is the most memorable drop? Not the one that you dropped. I must have dropped gazillions. I don't remember एक which कोई one. तो होगा ना memorable। मगर हमें हमारी बॉलिंग पे एक ही आवाज आती थी, सॉरी पाइन। नजर नहीं आया कि ये इधर से आती थी आवाज आपकी। नहीं, स्लिप कॉर्डन से। मैंने ये शायद पहले भी अपने किसी और प्रोग्राम में स्टोरी सुनाई है कि मुझे बड़ा शौक था स्लिप पे खड़े हो रहे हैं। बस सुनी हुई है ये। अब सारे फास्ट बॉलर की ख्वाहिश होती है कि उनको स्लिप में खड़ा किया वो जाए। लोग समझते हैं कि स्लिप में रेस्ट मिल जाता है, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस। It's not मैं like तो this. रेस्ट करे नहीं गया सबसे बट भाई। एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट, यू हैव टू फोकस मुझे ऑन पता भाजी बॉल कौन पा रहे थे जो आप स्लिप के नहीं, मेरे हत्थे सीने च बजा। नहीं बॉलिंग कौन कर रहा था? लेकिन वो आमिर सोहेल कर रहा था एक दफा, तो मेरा एक नहीं गिरा, दो तीन दफा गिरे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिंगल एक गिरा के मैं बड़ा प्राउड फील, नहीं, मोर देन दैट। लेकिन आमिर सोहेल वाला ये था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, क्योंकि गेंद न्यूजीलैंड में पिचेस ऐसी थी, गेंद स्पिन नहीं हो रहा था, उसने ला के तेज मारा है, और मैं अभी आंखें नहीं मेरी खुली, मैं जाकर खड़ा हुआ हूँ, और मैं मेरे से ऐसे हुआ तो ठा मेरे से ऐसे दिल पे। और ऐसी लगी कि मैं खुद ही कहता है पाया मैंने तो काट लो। तो उसके बाद क्या रियलाइज किया आपने कि मेरे बस की नहीं है? कैप्टन You know, you- कौन? सॉरी, अच्छा आपने खड़ा भी कर दिया उनको। अरे कभी कभी तरस आ जाता थी इन्होंने। मेरे को शौक बड़ा है, इसको खड़ा एक दफा खड़ा कर ही दियो विकी को। Did you remember the most? वो बड़े कैच छोड़े हैं नहीं मैंने। कोई ऐसा कैच जिससे बड़ा ही मतलब एक दौर मैं कहूंगा, एक दौर आया था। एक होता क्या है कि जब आपकी बैटिंग नहीं रन बन रही है और स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग अलग ही चल रहा होता है, तो फील्डिंग में फिर वो नहीं होता। तो एक न्यूजीलैंड का टूर था, वहां पे वैसे ही बड़ी सीम होती है, बॉल ये होता है वो होता है, तो मैं वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था। मैं वैसे बाहर आउटफील्ड में होता था, बट वो स्लिप की वहां से शुरुआत हुई, तो स्लिप में खड़ा हो गया जी। पहले मैंने स्लिप में छोड़ा है, अच्छा कप्तान दोस्त था तेंदुलकर, तो मैं कहा यार नहीं जबरी काम मेरे को बाहर करें, तो मैं ना स्क्वायर लेग पे गया, वो इसने फ्लिक मारी, वो वहां से छूट गया। बस पीछे लगी थी बॉल। नहीं फिर मैं कहा नहीं टेस्ट मैच था, मेरा टेस्ट मैच वैसे ही पता नहीं क्यों खेलता था मैं, बट फिर मैंने कुछ बात कर कुरा के ना, फिर मैं कहा शॉर्ट लेग पे खड़ा कर दे। कप्तान से बात नहीं क्योंकि एक तो कप्तान से बात करके नहीं, कप्तान को पता है, आपको पता होता है टीम में एक दूसरे स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है जो भी है, तो छुपाने को देख रहे होते हैं। शॉर्ट लेग पे तो कोई वैसे भी रेडी ही नहीं होता, तो मैं कहा शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ। मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ, वहां पे भी उसने ऐसे करके ना खेला, श्रीनाथ बैट पैड लगा, फिर नीचे। ये तो चले हो गया है, ये तो एक ही इनिंग की बता रहा है। एक मैच की बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि वो दौर ऐसा हुआ, उसके बाद ये रहा कहाँ तक, उसके बाद हमारा टूर शारजा आए खेलने, तो वनडे आया, तो वहां तो हम अपने आप को फील करते थे कि कंफर्टेबल है, विकी को देख लें तो वैसे ही अच्छा लगने लग जाता। तो वहां से I know what you mean। फिर मैं लॉन्ग ऑन पे खड़ा था, और उसको पता है, तो सचिन बॉलिंग कर रहा है, एडो ब्रांडेस बैटिंग कर रहा है। ओके, तो एडो ब्रांडेस ने मारी, ऊपर गई है। अब जब ऊपर जा रही है, जब आप ठीक नहीं है, दिमाग चल नहीं रहा, तो आपका क्या होता है, तो मुझे वहां क्या नजर आ रहा है, सचिन ने ऐसे बॉल डाली, बॉल ऊपर की, उसने देखा बंदा में, उसने ना मुंह ऐसे करके खड़ा हो गया कि वो देख ही नहीं रहा कि वो क्या रहा है यहाँ पे। सचिन just turned around and He went turned around because he knew कि इसकी हालत क्या होगी। And the worst thing in fielding is when you are struggling, तेज आ जाए, रिएक्शन में हो जाता है, बट आपको टाइम मिले ना नीचे खड़े होके वेट करने का, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और फिर धम नीचे। मतलब ये एक कैच नहीं है, वो एक दौर है, एक हफ्ते का पीरियड है। मुझे पता है कि वही गेम, वही बॉल जो आसान लगती है फील्डिंग में, को मैं मजा करता था, एंजॉय करता था, लेकिन वो एक ऐसा दौर था, मैं एक हफ्ते में मैं कहता था यार ये अब बॉल ऊपर गई। I think वो भी ऐसे किया, धम। वसीम भाई निखिल बहुत ऑफ यू ऐसी स्टोरियां सुनाते रहने हैं, तो सारी बड़ी स्टोरी। आप बताइए कि आपने कोई कैच ऐसा छोड़ा हो। ऐसा तो होगा। नहीं छोड़े तो याद आया मेरे से। आगे छोड़ा हो, ऐसे टाइम देता है ना, याददाश्त आ गई वापस। That's so. आप ये बताइए कि आपने जो ऐसा कोई कैच छोड़ा हो जो बहुत कॉस्टली हुआ हो। क्या वो याद ही वो आया। याद तो वही रहते हैं। बताएं। वो था डरबन में वनडे था हमारा वेस्ट इंडीज से, Okay. और मैं खड़ा था
एक्स्ट्रा कवर में, आई डोंट नो व्हाई। कप्तान था तो मैंने कहा चलो जरा हल्लाशरी देते हैं, एक्स्ट्रा कवर में खड़े होते हैं। वो फिल सिमंस था ओपनर, इफ यू रिमेंबर। फिल सिमंस ने मारा है, आई थिंक बॉलर ने, फास्ट बॉलर था हमारा, उसने बॉल किया है, बड़ा सीधा कैच आया, मैं ऐसे करके कुछ ऐसे करके पॉप्ड आउट, उस 125 कर गया अगले 20 ओवरों में। हम उनके पास भी नहीं पहुंच सके चेस करते। तो डरबन में शाम को गेंद वैसे हिलता है। तो उन्होंने पहले बैटिंग की, जब हमारी बारी बारी एज यूजुअल 80 पे 6-7 थे, हम वेट कर रहे थे कदों बैट हुए थे, कर चलिए। निखिल भाई 99 वर्ल्ड कप, आई थिंक हम लोग कीनिया वाला गेम का ब्रिस्टल खेले थे, ब्रिस्टल। इतनी ठंड थी और उस टाइम पे वो कोशिश वो करते थे कि वो हैंड वार्मर ये वो लेके चले, लॉन्ग ऑन पे खड़ा था, यू नो, आई यूज्ड टू कंसीडर माय सेल्फ की सेफ पेयर ऑफ हैंड, इतनी मतलब गुल तारा बनाई हुई है। वैसे आपसे लॉन्ग ऑन द सेफ फील्डर नहीं खड़ा होता। ओ भाई नहीं, उस टाइम में ना टुवर्ड द एंड वो थ्रो मारने के लिए ना 2 रन रोकने के लिए क्यों चाहिए बंदा डेथ ओवर में फील्डिंग करे, ऐसे गुलतारा बनाया हुआ, ठंड उंगलियां ऐसे। किसने मारा था? आई डोंट रिमेंबर Who was the bowler? ओडेन थॉमस। हाँ, और वो आ रही आई और ऐसे उंगलियां ना बर्फ की तरह थी, लगी और टुक। और वो बॉल भी वो ड्यूक के थे भाई वो कंचा बॉल था, ड्यूक का सफेद वाला। like that, they're rock वो इतनी hard. ठंड, मतलब उंगलियां ना बॉल डालने के लिए ना वो हैंड पावर मंगाने पड़ते क्योंकि उंगलियां इतनी ठंड हो जाती थी। और जब आप एंड में बॉलिंग करके खड़े हुए, हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, वो बैंड बज गया। नहीं, शुरू में उसके consequences क्या थे? 99 वर्ल्ड कप में एंड दी नहीं था, बट इट वाज वन ऑफ दोस कैचेस की अप्रैल में सीजन शुरू होता था काउंटीज का। तो अप्रैल में जब मैच आता था तो मैं पहले मैच में तो मिचलन मैन लगता था। 36 स्वेटर पाए होते सर, वो भी पाया होता, वो नीचे थर्मल भी पहने होते थे, बट स्टिल, और फिंगर्स यू नो वो ग्लव्स तो पहन नहीं सकते। I can understand. मैंने लाहौर में ड्रॉप किया था संगाकारा का कप्तान, नवा नवा बढ़िया से, मैंने शौक से जो सिंबे कहते हैं ना, कवर मिड ऑफ है जी, फैंसी प्लेसेस ना, Fancy places. तो फैंसी प्लेस पे मैं Hot- खड़ा hot गया शॉट spots. मिड विकेट, स्पिनर पता नहीं मुशीते नहीं होना मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं कौन सी दानिश के नेरे से उन्हें बॉल की तो संगाकारा फर्स्ट बॉल ही फेस्ड, उन्हें पीछे से उन्हें इस तरह आके ना दिया सीधा मेरे पास सीधा, वो मेरे इतने बचा सीधा इधर लगा और दोबारा फिर वकीच भी बचा, ठीक है ना, बॉल लग के पॉप कर गया भाई। पता कितना किया उसने? 300 200 बच गए 300। एक शारजा में छोड़ा था पापले में, जब 15 ओवर चीज नोट की है, सबकी याददाश्त वापस आनी शुरू हो गई है। नहीं, क्यों? एक दूसरे से कॉन्फिडेंस मिलता है ना, यार ये भी मान गया, वो भी मान गया, मैं भी बताए ये वो है ना, थेरेपिस्ट के उस पास जा रहे हैं। टाइम मैं देख रहा हूँ, मैं सबसे 50 ओवर की क्रिकेट में ना 15 ओवर का पापले होता था उस Yeah, टाइम, दो और वो fielder फील्डर catching और होते वो थे। स्लिप में बाजी वो छोटे वाली डॉट्स होती थी, उसमें खड़ा होना था। जयसूर्या बैटिंग कर रहा था और आई थिंक मैं दूसरा तीसरा मैच खेल रहा हूँ, श्रीनाथ बॉलिंग डाल रहे थे, एक तो वैसे ही वो तेज और वो कट मारे, हाँ, कट। मैं धीरे धीरे के वो लाइन से बाहर होके ना थोड़ा पीछे हो जाऊं, एम्पायर कहने यू हैव टू बी इन, यू हैव टू बी इन, Yeah. आई सेड वो मारेगा मत्थे पे बजेगी, दिखेगी नहीं, श्रीनाथ यूज्ड टू बॉल क्विक देन, Yeah. उन्होंने वही हुआ, ऐसे किया, जब तक मैं ऐसा कुछ किया बच गया, नहीं तो यहाँ पे मत्थे पे लगती, निकल गई, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। चलो पॉइंट बेस्ट ऐसे ही होता है। मैंने सवाल इनसे पूछना। मैं एक से रुक जाए, ब्रेक बहुत देर से मुझे कह रहे हैं। सवाल अभी पहला पूछ- जब आपसे मैंने पूछा था ना कैच क्या ड्रॉप तब किया, ब्रेक तब से ब्रेक का मुझे कह रहे हैं। तब सवाल ब्रेक पे जाना सवाल है। अभी बोल देता हूँ, जवाब क्योंकि याद रहे ब्रेक के लोगों बाद, को। कौन सा बॉलर की कैच छूट जाए जो सबसे मुश्किल पड़ती थी? हाँ, मतलब सबसे ज्यादा गालियां किस वाले बॉलर से पड़ती थी? ये आप बोल सकते Alright, वैसे folks. जवाब देने दी मैंने लोड नहीं है। Hey, Folks, this is the DP World Dressing Room, and you know exactly what kind of conversations we have over here. Ajay, Mubarak ho. We'll see you on the other side of the break. All right, welcome back to the DP World Dressing Room. We had quite a conversation just before the break about dropping catches, and Ajay Jadeja left the conversation with a question on the table, open for all to address. कौन सा ऐसा बॉलर था जिसका कैच छोड़ना सबसे ज्यादा पेनफुल होता था, यानी कि सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी? देखिए छूटा नहीं, लेकिन टेरर बना के रखते थे वो थे अनिल भाई। वो मतलब 40 गज दूर भी बॉल जा रही हो लेकिन दूसरा रन नहीं रोका तो फिर वहीं से वो रिएक्शन ऐसा आता था। क्या आता था रिएक्शन? पहले तो ऐसे हाथ दोनों ऐसे चले जाते थे कि पकड़ा नहीं, ये नहीं किया, तो मतलब सबको प्रेशर में बना के रखा होता था फील्ड में कि कहीं भी जाए, चाहे 40 गज दूर भी बॉल गिर रहा हो तो कैच है। कैच है। लगी वैसे अनिल भाई? आपस की बात है अनिल भाई, साथ में माफी भी मांगी लगी है। अनिल भाई? अनिल भाई आपस की बात है, अनिल भाई being a greatest bowler of all time as a leg spinner, वो सैंड बोल्ट नहीं थे फील्ड में खुद भी। ना लेकिन भाई ना हुसैन बोल्ट सन
और ना ही अगर आप कैच पकड़ भी लेते तो इतने को खुश नहीं चल होंगे को बहुत ओवर द टॉप नहीं होता था अच्छा ठीक है यार तेरा काम है तूने वो कर तो दिया टेस्ट मैच में जो सिली पॉइंट और शॉर्ट लाइन में खड़ा होता था वो तो कहीं से भी चली जाए वो कैच है, पूछिए उनसे। अरे कैच क्यों नहीं पकड़ा? पाकिस्तान फॉर यू? For me, let me think. Can you guess? I don't want. I asked you a question. You want to I'm not show guessing. some highlights from the past? Maybe. I think you can see Wasim Akram's वैसे expression. to be honest, मैंने वसीम भाई की बॉल पे कोई इतना कैच गिराया नहीं है। नहीं गिराए हैं, लेकिन इतने नहीं गिराए। मतलब मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा। गिराए होते तो मैं जरूर बता देता। लेकिन मुझे ये पता है कि जिन ने गिराए हैं ना, उन्होंने नाल हो ही की है। यार इतने कैच गिरे हैं, बंदा कितना का कंट्रोल करे। अब जावेद भाई ड्रॉप कर देते थे तो कुछ कह नहीं दे सकते। एक तो बड़े हैं, कप्तान थे, बड़े थे, फ्रस्ट्रेशन होती थी अंदर ही अंदर। वसीम भाई वो स्टोरी सुनाओ ना जो ज़ोहर ने ਤੁਹਾਡੀ गेंद ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਗਏ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥਰੋ What a nice family. All three brothers played for Pakistan. Manzoor Alai, Zohar Alai, and then Salim Alai. Yeah. I mean that's incredible. और सारों की परफॉर्मेंस भी बढ़ी है पाकिस्तान से। वो जहूर आई थिंक 96-97 का टूर था, तो गली में था वो। गली में था कि स्क्वायर लेग पे था, आई डोंट रिमेंबर। गली में था वो ऐसे वो बड़ा हाइपर काइंड ऑफ अ गाय। You tell the story, yeah. He was very hyper. तो गली में गया, उससे मिस फील्ड हुई तो वो सिंगल ले गए। तो मैंने कहा गेंद शूट, उसने डाइव में गेंद मारी थी, अपने पैर में मार ली तो दुक्का ले गए। अच्छा दो हो गया, दूसरा हो गया। तो किसी और ने भी एक प्लेयर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एडलेड में वो सीगल्स बड़े होते हैं ना, दूर दूर तक सीगल्स बहुत होते हैं एडलेड में। वो थर्ड मैन पे बॉल गया तो वो सीगल्स थे, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया उन्हें, वो दुखा हो गया। मैंने उसे झड़का, मैं कहा की कर रहे हैं? कहना सॉरी पाने तो बगला किटा किटा बड़ा है। मैं कहा बगला नहीं है, सीगल है गया। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਗਲਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਗਲਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। Bagla is slightly smaller than seagull, big birds. Yeah. Zura, you know, always intense. Yeah. I think under 19 में भी हुए। मंजूर? Zahur was our batch. नहीं तो उसी सीरीज में इफ यू रिमेम्बर तो एक पाकिस्तान टीम में गेंद कम थे, तो एडलेड के जो नेट है ना वो ग्राउंड के पीछे है। सो नेट के साथ इतनी सी दीवार है और उसके पीछे एक और ग्राउंड है, वो थोड़ी गहरी है और पीछे है वो, उसको रास्ता नहीं जाता था, उसको रास्ता नहीं था जाता। तो मैंने फाइन मैनर मुशी भाई कोच थे, अपना मुश्ताक मोहम्मद, ग्रेट मैन। सो हमने कहा जी जिसने गेंद उधर मारा ना $50 फाइन है। उस वक्त $50 बड़े थे 96-97 में। तो ऑस्ट्रेलिया ने 4 बॉलर दिए होते हमें, तेज थे ये गोरे वो नेट बॉलर्स। तो आई थिंक वन जहूर ही था, सॉरी जहूर, बट फनी स्टोरी। वो बैटिंग करने गया है तो इधर पाकिस्तान टीम, हम 7 वाले नेट पे नॉर्मल बैटर, हम बॉलिंग कर रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे। बैट्समैन इंजी होगा, सईद, जजो भी थे। अब जहूर को मैंने कहा पैट करके तू इनसे उतनी देर नॉक कर ले। वो नए लड़के थे यंग, उन्होंने इंप्रेस करना था, पाकिस्तान टीम को बॉलिंग कर रहे थे। अब वो आए, उसने पहला गेंद कितना जहूर के यहाँ से तेज थे, विकेट भी तेज थी। दूसरा किया, उसको यहाँ कहीं वकी पे लगा, तो 2-3 दफा उसे बीट भी हुआ और समझ नहीं आई। कहता पायन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। और पुल की सी वो दीवार दे परले पासे जाती तो $50 फिर मैं नहीं देता। पुल ऐसे नहीं से मार रहा है कि $50 पे खा लो ऐसे खा लो और $50 नहीं। Sweet. तीनों भाई बहुत तेज लड़के। So the Australian young fast bowlers on the nets also had quite an impression. Talking about that, we had another one today, and Spencer Johnson bowled really well, Wasim. Yeah, I did. Pitch उसके मतलब की थी। बॉल सीम हो रहा था, हमें तो बेल्टर बताया गया था। हमने देखते ही जब जो उसने वो मार्क साइन किया ना अपना बैटिंग का, वो जो करते हैं आके निशान लगाते हैं क्रीज पे, जड्डू ने हमें कह दिया कि ये पिच में नमी नजर आ रही है, बिकॉज वो लाइन से पता लग जाता है। गीली सी वो डार्क, and that was his wicket. एंड शुरू में भी विकेट वो यॉर्कर पे जब गुरबाज को उसने आउट किया है, बड़ी जबरदस्त इसने बॉलिंग की है। सो ही इज अ बॉलर, और पेस भी इसकी आ रही थी 140-142 अर्ली ऑन। अगर ये शुरू में और कंट्रोल करता तो शायद 1-2 और आउट कर जाता ये नए बॉलर। अभी इसका आई थिंक स्टिल लर्निंग, आई स्टिल फील के इसके पास उतना कंट्रोल अभी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द विकेट जो सरफेस में जो हेल्प थी, that really helped him through already that. making an impression. See, everybody in our mind we're thinking Mitchell Starc, this, that, the other. ओजस से उन्होंने बैकअप भी अभी जो भेजे हैं बॉलर, माशाल्लाह वो भी देख लें। Dwashers, another one, 3 wickets today. Fantastic performance, Waqar.
Yeah, I mean, left armers are always hard. Yeah. Not only on the field, off the field also. And you know, I thought he bowled better with the new ball. Later on, दूसरे ने आके बेहतर किया था, but he was among the wickets, so it helped. जिसकी शायद उतनी pace नहीं है जितनी the other left armer, but they're both fantastic. I mean, they're for the future. अगर भाई, if I may ask, वसीम भाई, जिस तरीके से नया बॉल चल रहा था, इधर-उधर जा रहा था, नजर आ रहा था स्पेंसर का रेडार थोड़ा उड़ा हुआ है. You know, he I was all don't over the blame place. him because, like Waqar rightly said, कि it's very difficult for a young bowler to control the ball, especially the new ball. Because मुझे तो पता है वो 90s में जो वर्ल्ड कप में मैंने I think 43 वाइड्स किए थे, कंट्रोल ही नहीं था हो रहा. So same goes with any young bowler जहाँ हल्की सीमिंग विकेट मिलती है तो I think उसमें eventually I realized learned कि जो आपकी natural swing है सिर्फ उस पे फोकस करो. Don't try to bowl both swings when it ball is seaming around because one day cricket में because वो control नहीं आएगा. वो confidence अगर 2 वाइड हो गए एक चौका हो गया वाइड पे प्रेशर आप पे एज अ बॉलर आता है फिर कंट्रोल और नहीं होता फिर आपकी पेस भी कम हो जाती है. वैसे वसीम भाई आप इतने साल लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले, मैं भी खेला हूँ. या ऐहो जी विकेट सानू देनी आज तक ऐसी विकेट नहीं मिली. वो ना कराची में कभी वैसी मिली जो उस दिन मिली है, जो अफगानिस्तान साउथ So अफ्रीका we are getting better. शरारती विकेट नहीं मिली. नो शरारती But विकेट. these wickets are made by the ICC's groundsmen. Maybe that's why. और दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि लाहौर में शायद बारिश हो रही थी, कवर्स ऑन रहे हैं, सूरज इतना लगा नहीं इसलिए नमी रह गई है. मे बी दैट्स वसीम भाई एक तो पक्की गल है ना कि कोई ऐसा ग्राउंड्समैन आके 4 दिन में पिच नहीं ठीक कर सकता. उसकी नेचर है पिच की, वो उसको नहीं बदल सकता. हाँ ये हो सकता है कि जी इन्होंने पानी वानी लगाया होपिंग थिंकिंग कि सुबह धूप निकलेगी तो ड्राई हो जाएगी. धूप ना निकली. वही हुआ होगा. हार्ड तो है ही है. या हमारे प्रोड्यूसर मंदिर जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट ये है कि जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें. वसीम तो जरा उन्होंने मुझे बोला है कि जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस रिव्यू कर लें. आप करेंगे? पता है ऑन अबाउट जिम्बाब्वे कौन? बस समझ गए आप. सो बेसिकली वेक अप, गुड मॉर्निंग. अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस का रिव्यू करना था. I just wanted to tell you I'm not the only one who slips up. Yes, there are other people that are slipping up as well. वेरी नाइस शाबाश वेरी शाबाश. नाइस. वो टंग ऑफ द स्लिप होगा ना. Tongue of the slip of the tongue. मैं कहे जिम्बाब्वे कितनी खेड़ी है. I know. It was just as per him, tongue of the slip हो गया है basically. Yeah. But Afghanistan should go home very, very proud. They've had another good ICC event. They defeated England in the World Cup here in the ICC Champions Trophy, and not by a fluke or anything. They're clearly looking like a better team every time we see them out there. Jonathan Trott, Yunus Khan, well done, and of course all the boys there should be very, very proud of themselves. They were fantastic. आई थिंक इस टीम में आप एक जेन्युइन पेसर डाल देना, एक जेन्युइन, 2 भी नहीं, शायद 2 तो आइडियल है, लेकिन एक जेन्युइन पेसर 145 वाला अगर इनकी टीम में अच्छा वाला आ गया, दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड टीम बिकॉज इनके दोनों ऑलराउंडर मीडियम पेस, दे वेरी स्मार्ट, अच्छा बॉल करते हैं और स्पिनर्स तो इनके हैं ही हैं. तो बैटिंग आपने देख ली है. सॉरी भाई, नहीं आप करें बात, मैं बाद में करता हूँ. हाइंडसाइट आफ्टर पहली इनिंग खत्म होने के बाद डू यू थिंक जॉनथन ट्रॉट वुड हैव रियली थॉट अबाउट कि यार ऐसी विकेट पे हम लोग पहले बॉलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी ताकत बैटिंग करके डिफेंड करना है, बट ऐसी विकेट पे यू नो जैसे टीम खेल रही है, डू यू थिंक दे कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार कि हमारे मतलब की विकेट है, लेट्स ट्राई एंड लुक टू बोल द ऑपोजिशन. I think in hindsight things look easy, but not today. But as I said, my interaction or whatever I've seen, he's a very disciplined man. He has plans. There is nobody who makes better plans. He looks at data very closely, thoroughly, and so हो सकता है कि कल ही उन्होंने decide किया हो, pitch को नहीं देखा. It is not. I'm saying it's right or wrong because there is a way that each one plays their game. और ये भी नहीं है कि सिर्फ कोच डिसीजन लेता है ना यार, खराब हो जाता है हम कोच पे चले जाते हैं. कप्तान भी तो हैं, प्लेयर्स भी हैं, और इस टीम में तो काफी सीनियर प्लेयर्स हैं जो काफी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. सो आई वोंट पुट इट के सेइंग कि हाँ, बट ये बात फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमें नहीं नजर आई, बट उस पिच पे ये तो पक्का होगा उनको कि यार हम इस पे बॉलिंग कर सकते थे, क्योंकि उस पे बैटिंग करने का तो किसी को शौक नहीं होगा, स्पेशली शाम को जो देखी है. और अगर कुछ हुआ है तो वही होगा ना, बारिश में मॉइस्चर था, रह गया. बट अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी होती है ना. एक और चीज जो टीम में उसके साथ होती है, जो हमारे साथ यहाँ पे बैठ के या जब शोज कर रहे होते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस बोथ साइड्स नाउ, सो आई कैन से दैट, कि जब आप
एक टीम होती है ना, आप उसी 15 लोगों में होते हैं, आपको ना सिर्फ अपनी दुनिया नजर आ रही होती है कि आपने कैसा किया है पिछले मैच में, आपको क्या कंफर्टेबल नजर आ रहा है, आप क्या करना चाहते हैं। आप और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम 6-7 टीमों को देख रहे हैं, हमारे साथ 6-7 एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और मैं भी कई बार सोचता था जब खाली टीवी पे होता था, जब आप टीम के साथ है ना, तो जब टूर कर रहे हैं, माने जैसे परसों मैच हुआ, उन्होंने नहीं देखा होगा कल का मैच, वो शायद फ्लाइट पे हो, रिप्ले देखे होंगे, स्कोर देखा होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूज नहीं रहती, लेकिन उनकी जो नजर है वो अलग चल रही होती है और वो एक दायरे में होते हैं जब आप एक टीम के साथ हैं। तो इसलिए अब मुझे समझ आती है ये चीज कि एक टीम को इसलिए ऐसे रीड कर सकते हो आप कि यार ये कौन से दायरे में चल रही है, और हर एक अपने अपने बबल में चल रहा होता है। और ये अफगानिस्तान का जो बबल है आज जो फूटा है, वो इस बबल में ऐसे ही था कि भाई पहले बैटिंग करके हम स्कोर करते हैं, फिर दूसरी टीमों को हराते हैं, तो काफी चीजें होती हैं। बट ये फैक्ट है कि वो बदलते नहीं, रोज नहीं इधर से उधर जाते, उन्होंने जो प्लान बनाया है उस पर स्टिक करते। चेंजिंग द सब्जेक्ट अ बिट, आई वुड रियली माय दिली जो ख्वाहिश जिसे कहते हैं ना, वो है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, स्पेशली अंडर 19 या A टीम, is run by Yunus Khan. I think he's an ideal candidate. I don't know, somehow उसको PCB convince करे, जो उसकी demands है वो पूरी करे, अगर उसको power चाहिए power दे, because that guy is, apart from being the greatest batsman Pakistan had produced, his work ethics still exactly the same when he played. Batting ले लो, hard work ले लो, planning ले लो, and I think he'll be ideal for young Pakistani players कि उनको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है, उनको वो तैयार करके आपको देगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े पीसीबी को करना चाहिए। And not to forget, Wasim, that even on his fitness to date, he works on his fit. I mean, he's probably more fitter than a lot of the boys that are playing. He's a kind of a freak in a good way. Yes. Yeah, you know, he's focused. If he's उसका जो tunnel vision है, उसकी जो job है, वो उसके लिए सब कुछ है। बिल्कुल। So we need somebody like him to look after Pakistan, younger generation, जो कि आपको प्लेयर तैयार करके आगे पाकिस्तान टीम में आए। होप के पीसीबी में उसे कोई कन्विंस कर सके फॉर लॉन्ग रन। एंड वंस यू, अगर वो मानते हैं जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनके साथ उनको पावर दें। अगर उसने कैंप लगाना है, उसने कुछ करना है, उसका बजट तैयार रखें, उसको ये ना कि उसको लटकाए ना। पता है कि वो कैसा बंदा है, पता है कि वो टची है, फेयर एनफ, दैट्स हिम, बट मेक श्योर यू वर्क विद हिम. Yes. Not against him. Not against him or try to make him, subservient to the system. You've got to work with him. I think that's the right way to go about it. अफगानिस्तान ने और कुछ किया हो, मगर इंग्लैंड की कप्तानी ले डूबी है. Yeah. और Joss Butler has announced to step down from white ball cricket captaincy. I think it's just not Afghanistan. That was obviously, we call it last nail in the coffin. Yeah. But पिछले 10 मैचों में से 5-6 तो वो 7 हारे भी हैं. 6 लगातार. और प्लस 6 लगातार हारे हैं. और प्लस बटलर जो हमने देखते आए हैं उसके करियर में, T20 ले लें, वनडे ले लें, ओपनर है. और वो बड़ा डैशिंग ओपनर है, बड़ा डेंजरस प्लेयर है. जब उसको 5-6 पे ले आते हो एज अ कैप्टन, वो अपने आप को नीचे ले आते हो, उसकी गेम 6 पे बैटिंग करना डिफरेंट है, ओपन पे बैटिंग करना टोटली डिफरेंट है. मे बी दैट्स व्हाई इट्स अफेक्टेड हिज गेम एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द टीम जो हारी भी आ रही है, इसकी अपनी गेम भी इफेक्ट हुई है उससे. Yep. All right, with that, it's time to take another break here on the DP World Dressing Room. When we come back, we get closer to #Ask the Room and your questions and their answers. Stay with us. I have always believed that cricket can play such a positive role in the lives of people and communities around the world. That's why I'm proud to be partnering with DP World in this new initiative to make cricket possible. We wanted to develop a truly unique and special cricket experience with everything needed to play cricket, including the bat, balls and the scoreboard. And because it's made from a shipping container, we can use smart logistics to deliver it to communities that will benefit from it. Now I can bat like Sachin. It's just the first of 50 containers that we are creating. It's all part of our mission to make cricket possible. It's very thrilling and just the beginning of an exciting journey.
All right, welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Anam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. And I've got four fantastic gentlemen with me in the dressing room. I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. And we were talking about Afghanistan and so forth and so on. But Josh Butler leaving, and they still have a game to go. And, you know, him announcing that, how that really sets back a team, doesn't it, Wasim? I mean, the captain is saying, I want to give up, I don't want to be the captain anymore. And you still got a game to go. ये तो मैंने आपको उस दिन कह दिया जब इंटरव्यू देने आ रहा था, when he was walking to the interview, I could tell that he's done. Yeah. He was body language, the way he gave the interview, I could tell that it's a matter of time. He seems like too nice a man. I think he's not a man. I mean, he's led the team really well. No, I mean, he's done the best that he can. Yeah. And each one has his own style. Maybe there's, you know, sometimes you make a call and, you know, you put yourself in front so that others around you also take a hint. Because, you know, it could be that he's, you know, taken one for the team. Because just because you're not the captain anymore doesn't mean that you won't be taking a major role or major part in that team. Absolutely. He's probably thinking about कि अब क्वालिफाई तो कर नहीं रहे मैंने मन बना ही लिया आगे जाके कि किसी सीरीज में कप्तानी करूंगा लेट whoever carry on with the reins and let's see how he runs the team. Transition करने का time आ गया. All right, folks, with that, it's time for the DP World Beyond Boundaries initiative. Today, first up, Afghanistan scored 270, and then in reply, Australia, when the match was abandoned, they had, what score did they have, guys? This exact score? 109. So that adds up to 300 runs, basically. So 30 kids today are going out to be delivered in partnership with the ICC. Remember, the DP World Beyond Boundaries initiative is to promote cricket at grassroots levels in different parts of the world and working in partnership with the ICC to making sure that these kids are delivered by the DP World team wherever they need to reach in the world. And that's your DP World initiative. And with that, it's time for the DP World Dispatches of the Day. Right, with that, it's time for the DP World Performance of the Day. Smart. And with that, it's time for the DP World Smart Stat of the Day coming up on your screen. And Nikhil, your thoughts? Wicket अच्छी थी and they were looking to chase down the score. Australia's 94-1 just goes to show कि भाई Champions Trophy है, must win उनके लिए qualification दाव पे. Let's just take the attack to the opposition. 90-1, phenomenal. Yep, absolutely. And with that, guys, it's time for the fastest delivery of the day, brought to you by Food Panda. $143 kilometers. Is that fast, Waqar? Not really. That's what I was thinking, yeah? But it was the fastest today. I mean, अगर टूर्नामेंट को देखेंगे तो बहुत सारे 153, 154, 153 भी हैं. But yeah, आज के दिन के अगर fastest है तो of course he's the one. इस मान ही लेते हैं अगर आप कहते हैं. All right, folks, with that, we are now getting close to hashtag Ask the Room. ये याद रहे कि Ask the Room में
Ajipaji, can I have the ball, please? Yes. This is a cricket ball which will be signed by our panelists right here. And when we take your questions and your answers, we will then select one lucky winner who will get the signed ball, and it will be dispatched to you by DP World. So be ready. Get your devices out. Hashtag Ask the Room, Instagram, X, Facebook, and you can now also comment and send your questions on YouTube links as well, which of course will be read out the next day from the day of the broadcast. And you can win the cricket ball signed by these four guys. With that, we're going to take a break here in the DP World Dressing Room. When we come back, it's hashtag Ask the Room. And ready to be dispatched to one lucky winner of hashtag Ask the Room. Hashtag Ask the Room का सिलसिला बाकायदा शुरू करते हैं दोस्तों. And first up, guys, I've got something really, very, very special here. Instagram से हमने ये pick up किया है, guys, and I wanted to share it because this is very Saira Adnan Zafar. Saira Adnan Zafar लिखती है, Fakhar bhai, I want to share that my son is on the autism spectrum moderately, and he has developed a love for cricket and mostly bowling. He has yet to figure out how to hold a bat. I took him for a private class at Pro Athletic Academy in Karachi and DHA and all that. I want to share some of his videos. He has picked up bowling by watching cricket with me, and I'm hoping we can take it further. However, because of him being neurodivergent, he might not follow instructions immediately. But I will persist. Yesterday, you brought up children in sports. My elder daughter does indoor rowing from her school and now A-levels. It's only done at one particular club, and it's more of an elite game as not everyone is able to access it easily. My thoughts are the same, that sports is not accessible to all. Even the privileged have to pay hefty amounts for coaches and using grounds. So hopefully in near future, we have more inclusive setups where my son can also thrive. Some children need more assistance than others in team sports, even if they have talent. बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका असेसमेंट भी बिल्कुल ठीक है. फॉर इंस्टेंस आप टेनिस ले लें, टेनिस आप कहीं खेल नहीं सकते. You have to be a member either of a gymkhana club or whatever the club is. You have to get your own racket. You have to get. That's why countries like Australia, England, Australia में हर suburb का, आप मेलबर्न ले लें, सिडनी ले लें, जो भी सिटी ले लें, ओके बहुत बड़ी जगह है वो, ठीक है, इट्स अ कॉन्टिनेंट. हर सबर्ब का एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, ऑजी फुटबॉल ग्राउंड है, रग्बी है, फुटबॉल है, पैडल टेनिस है, पिकल बॉल है, टेनिस कोर्ट्स हैं, यू नेम इट एंड दे हैव इट. एंड अनफॉर्चुनेटली साढ़े यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दो, कॉर्नर द प्लाट में रहे. So firstly, Saira, I just wanted to say thank you rowing for as sharing, well. Thank you for sharing your story. It's really special. Yeah. And you know, हम पहले ही बात कर रहे हैं कि sports की facilities के बड़े issues हैं, जिस तरह अभी वसीम ने भी कहा. But as far as your son is concerned, you know, him being neurodivergent, as you said, or moderately on the end of the autistic spectrum, I understand the challenge, and I'm thinking those who have more differently abled children, what happens to them? So our thoughts are with all of them and with you, and for you being a brave mother to share this story with us, because हमारे मुल्क में unfortunately इसको भी लोग जो है से घबराते हैं बताने को कि यार my child is a little challenged or you know is differently abled. Sorry, let me rephrase. Differently abled. उसको भी unfortunately हमारी society में पता नहीं क्यों समझा जाता है कि कोई गलत बात है. Thank you for being brave enough to sharing that story. Thank you for sharing the video, because I want to play that video of your son who's learned this by watching cricket with you. Thank you for being a brave mother, and I hope all other mothers. That's your son there, and he's वो मार्क वार्क छोड़ के जाके, you know, he's just this is just very uplifting to my heart to see that. All of us. That's just all of us. Yeah, beautiful. I wish him all the luck. Yeah. I'm sure he'll do wonders. And all you know, the love from us. Yes, and Saira, you know what? Because he's a bowler and he's bowling, we're going to get one more ball signed and dispatch it to you with from DP World. That is not part of the. Can you throw that ball back to us, please? And here we go. Oh.
And guess what? Ajay Jadeja has dropped another catch. ladies and gentlemen. It's Ajay Jadeja at it again. Thank you for that extremely rough throw. By the way, that throw came in from Waqar Yunus's son. Like father, like son. Huh? Even the father couldn't throw right. See, it tells you that he's not so upset with me as much as he is. And I got it. Ooh, that was really high, by the way. So Saira Nan Zafar will have this signed and sent. मेरा कैमरे शैमरे आ गए थे बल्ले ही टिकट ही खेल लेने. So that was a very unique. I wanted to really share that because I think it was very That was special. excellent. Yeah, and then I have. Let's go back now, and we have more hashtag Ask the Room. All right, my question. Okay, this is Farhan Naim. Farhan Naim, and your handle is also Farhan Naim 39. Farhan Naim पूछ रहे हैं, my question to the panelists, all the panelists. Multiple Indian journalists are visiting Pakistan right now, and one particular journalist has been getting a lot of love and respect on TV shows and in the streets of Pakistan. Without any security. Without any, well, he didn't say that, but he's No, saying I'm telling you. he's getting a lot of love on the street and recognition. We are people that share so much affection. It doesn't matter where you come from. Pakistan is always hospitable. Why then is there a problem for Team India to visit Pakistan? I can answer that, but Yeah. I suppose हमारे guests जो है वो पहले I answer think करें दें. I would say Don't put them on a spot. We shouldn't put them on the spot. You not should at all, not at all. I think I would take it a little further. I think it's so sad that we need to talk about it. Yeah. That hosting somebody in our country, whether it's in India or in Pakistan, has become a thing of, oh, somebody's doing a great thing. Because I think our countries, I mean, whether it's Pakistan or India, in our homes, everybody has always been welcome. Not today, I think 100 years ago, 1,000 years ago, we have always been a society that welcomed. There were no restaurants in these countries. Yeah. There were no dhabas because खाने की बार अगर आप travel भी कर रहे होते थे. So I think this comes second nature or first nature to an Indian or a Pakistani. I can go to that extent because I know enough friends from across the border. And hospitality or hospitality कहें या प्यार मोहब्बत कहें, अपने घर कोई आता है तो हम हमेशा उसका उतना ध्यान, अपनों से ज्यादा ध्यान हमेशा दूसरे का रखते हैं, बिल्कुल, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान. वो जहाँ जा रहा है इसमें कोई डाउट वो वहाँ ना सिक्योरिटी है उनके साथ, वो खुले बाजारों में घूम रहे हैं, लोग उनसे शॉपिंग के पैसे नहीं ले रहे. So that shows the love of in hospitality in Pakistan is one of the best in the world, and we welcome people from all over the world. Yeah. So I hope in future India team comes to Pakistan because things are very normal. Yeah, there. and I would also like to. In fact, India at the moment I think has a line also. Not आज की line नहीं है. Atati Devo Bhavo is what India prides on, and I think it's the same. I don't know whether you have an official line or not, but I've always experienced that. So I also want to say that every year we welcome thousands of Sikh pilgrims that come here for a pilgrimage as well. And just recently there is another, I think Hindu pilgrims are also visiting Pakistan right now. Some 600 plus visas were issued just now, recently. So good things are happening also. And I think we should look at it in the positive way always. Always. Yeah, that is the way to see. Teams Exactly. coming and not coming has a whole different reasons, and those are decisions not made by average people either in Pakistan or in India. Those are people who are responsible people, and I think that will be answered by them. Fair and enough. I don't think I just it would hope- be fair also for one of us to actually answer. I that. just hope that when our friends who are visiting Pakistan, when they go back and they do their vlogs and their their pieces on media, that they will share these stories, these extraordinary stories. सर मैं तो एक स्टेप आगे चला जाऊंगा. अगर आप मेरे घर आए और मेरे घर में खाना अच्छा नहीं भी बना था, तो आप बाहर जाके ये थोड़ी बोलते हैं कि यार जाट के घर में ना खाना बड़ा गंदा था. हमारे वहाँ तो मुल्कों में ये है, किसी के घर आप गए हैं और अगर थोड़ा नमक कम है और ज्यादा भी है तो भी आप ये नहीं बोलते. अपने घर में तो फिर बोलना चाहिए, दूसरे के घर में तो बिल्कुल भी नहीं बोलते भाई. तो बेगम का जैसा भी खाना है बस वो हमें पसंद जितनी हॉस्पिटैलिटी वो नजर आ रही थी, अगर कुछ ऐसे कुछ होगा उन्होंने टालांगे. ऑलराइट, अब्बास बाबर का फोन आया है. उठ जाओ. Should I take over? आप लोगों ने इतना अंडर प्रेशर कर दिया है कि वो अब्बास बाबर is saying in hashtag ask the room. Very important. Fakhar bhai, we saw Glenn Phillips is also a pilot just like you, but we saw him the other day take an unbelievable catch.
उसने बिना जहाज के उड़ान पकड़ी थी. Will we be seeing that from you dressing room में भी ऐसा कैच हो जाए? अभी तो पकड़ा. अभी पकड़ा मैंने कहा दोबारा नहीं कर सकता. But thank you Abbas Babar for sending us that. Right on. We've got आज तो तुसी आगा बाटा हुए हो. Yes, nice one. आगा बाटा, that's good. अपने one half आगा one half बाटा. दोनों एक तो यार लेफ्ट धीरे से आगे अच्छा भाई, अब्बास बाबरी का दूसरा ट्वीट है जो आप मुझे अभी दिखा रहे थे. Me introducing the panel. Yeah, that's excellent. Yeah. You're good at it, buddy. Yeah. You just Abbas Babar के पास कंट्रोल बहुत हाथ time में है. ना भाई, कंट्रोल जब हाथ में होता है तो फिर अपनी मर्जी से उस्मान सिकंदर कह रहे हैं huge fan of Wasim भाई. Will be a dream come true to get a signed ball from the legend Wasim Akram. उसके लिए कुछ Thank you करना पड़ेगा. Usman, but I'm sorry that's not going to qualify you to get the ball. अच्छा जी, कुशाल रंगता asking you about England. वो भी तो एक ही वेन्यू पे 2 मैच खेले with full rest. So इस हिसाब से तो उनको दोनों मैच जीतने क्वालिफाई कर लेना चाहिए था. Good show, keep it up. कुशाल रंगता. Good point actually. Yeah, very good point. But I suppose उनके ex players ने क्या है, उन present players ने नहीं कहा कि India is at one place and blah blah blah. वो Michael Atherton और शायद Nasir Hussain mentioned it somewhere in the vlog और जो भी कहते हैं उसको. Alright, अतुल झा कहते हैं you legends deserve all the achievements, the best cricket talk show, unbiased discussion on cricket, old cricket stories by the legends. What more can anyone want? And a terrific host. That's the best line, by the way. And a terrific host. One question to all the panelists. तो नहीं पढ़ा ये question. मैंने लिखे अतुल झा. वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्फ अतुल टॉम या कुछ ऐसी कोई चीज है ना. अतुल झा ते की लिखे what more anyone want and a terrific host. लिखे ना एनक पा के देखिए जरा. Please wear the annex. Reads again. दूर दिया. बारिश लाहौर हो ये याद रहे. अतुल आप कहाँ देख रहे हैं ये? आप इसके दोस्त तो नहीं है? कहीं इसका फेक आईडी तो नहीं बनाया हुआ आपने? खुद ही अपने आप को भेज रहा है. Atul Jha 012. Which one rule from past you want in nowadays ODI cricket changed? All 4 of you he's asked. Thank you. Fakhar is a good host. At the end वो फिर लिखे. अतुल भाई तेरा नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. ये. Okay, let's go. Which one rule would you guys like to change from the old days? I would like to see I mean bowlers को वैसी बड़ी फड़कास पड़ी है, तो रहने दो. तो कैचिंग भी होने चाहिए पहले 10 में. दो कैचिंग. गुड पॉइंट. वसीम भाई कह रहे हैं हंसी क्यों कल्ले ही फंसे हुए थे. इन्होंने भी फंसा. भाई स्पिनर वास्ते भी सोच लो 40 ओवर तक एक बंदा और एक्स्ट्रा तो 30 यार्ड के दायरे के अंदर होता है. कैचिंग वाले क्यों करो जेडे पहले 10 ओवर आज बाहर ने दोनों ने अंदर ले. वैसे ये वनडे क्रिकेट एक जमाने में बगैर सर्कल के भी होती थी. बेस्ट मजा आता था उसमें क्योंकि तब पता चलता था कि कप्तान कैसे सोच रहा है. एक बॉल सर्कल कहाँ थी पैन? राइट. आप 85 में आए जब तब सर्कल शुरू हुई नहीं. तब ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ ना सर्कल. और ये लोगों से बराए मेहरबानी उससे पहले ए ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਐਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ. देखो मैं बताता हूं. एक ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ मैं समझता हूं कि आपने रिवर्स स्विंग को किल कर दिया. एक बॉल करते हैं वापस. मैं फिर भी कहता हूँ कि चलो जी फिर मसला ये है ना कि अगर आपने एक बॉल किया ना फिर थोड़ा सा वो डार्क हो जाता है ना. बैटर्स एक मिनट तो पहले चीखलना. फिर बैटर्स आर मोर बॉलर. देयर आर लेस बॉलर्स. इवन मीडिया में भी जो बैठते हैं बॉलर्स कम बैठते हैं. ज्यादातर बैटर्स हैं आप देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अच्छा आप उसको एक ना करो. मैं कहता हूँ 2 रन शुरू कर लो. 35 ओवर पे एक बॉल निकाल दो. 2 से शुरू करो. 2 से शुरू करो. 30 ओवर में या 35 ओवर में एक बॉल निकाल दो ताकि वो थोड़ा सा तो कुछ उसको बॉलर के पास हल्का सा स्विंग हो ताकि. So who decides this? ICC और MCC? कमेटी होती है एक इनकी ना जो रूल्स पे हर साल बैठते हैं ये लोग. देयर आर लाइक few captains they sit and they just discuss things कि ये और इसकी बेहतरी कैसे लाई जा. उसमें बैट्समैन है बॉलर है? बैट्समैन से ज्यादा. अभी कौन है? ये कोई हमें बता सकता है कि ICC की ये कमेटी में जो मजर जरा इसके ऊपर जरा रिसर्च करें ना. मजर से और इमरान से बोलते हैं they should try to find. अच्छा जी, ईथन हंट ने टॉम क्रूज की तस्वीर लगाई हुई है और ईथन हंट रॉजर इनका एक्स हैंडल है और कहते हैं द शो हैज अ वाइब फन क्रिकेट. On 28th Feb 1992, Ajay Jadeja made his ODI debut. For 90s kids, he was a 6-hitter, great fielder, rock star, dancer. Jadeja and Wasim sir
Please do one step from Jaddu sir ये तो song that is attached. उन्होंने ये वीडियो भी लगाया है दोस्तों, ये अगर आपको इधर से दिखा ऐसे करना ना, बड्डी हो जाएगी। एंज कर देना, एंज कर देना। ये कर दिया, कुछ हुआ है, हाँ ये हो गया। आवाज ये वाला गाना है ये तो- जाडेजा सर का, ये तो ठीक है ना? पिक्चर का वो खेल। ये पिक्चर का वो है। इसका जरा एक स्टेप चाहते हैं, एक बैठे स्टेप बैठे कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप दोनों मिलके करें वो स्टेप। ये जमाना गुजर चुका है। नहीं यार, जमाना गुजरा How was the experience? रंग तो नहीं ना गुजरा। I loved it. Who was the actress? Who were you? What role were you playing in this movie? I mean, I was playing a role जो राइटर ने लिखा था। ये दूर की आवाज you were a में दूर hero? की आवाज था। हीरो थे? एक मिनट, सवाल तुम्हारा पूछना, यू वर अ हीरो का क्या मतलब है? मतलब क्या मूवी ना? यार ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे, वो छोड़े, आप लोग अपने में लगे हुए थे, इधर जो छक्का मारा है भाईजान ने, क्या कहा जिन्होंने? कहते हैं वो फिल्म में दूर की क्या था? दूर की आवाज में दूर की आवाज था। अच्छा नहीं जड्डू भाई, सही बताए ना, what was the character? Do you any famous dialogue? Forget the dance move, हम आपको डांस मूव करने को नहीं बोलते, आपका डायलॉग तो कोई याद होगा ना अपनी फिल्म का। यार ऑनेस्टली बताऊं, वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे और जो हमारे साथ होते थे ना रिकॉर्डिंग के टाइम, क्योंकि अनपढ़ आदमी है, पढ़ा जाता नहीं, तो वो डायलॉग में अपने बनाए चलता चला गया। यू नो कि स्क्रिप्ट तो होती है, You kept improvising, you mean? and you know it wasn't one of my okay. best यार ये जरा क्लोज अप बनाए जड्डू भाई से। efforts in life or one of my best That's fine, times, but you acted. in terms of what I had to deliver. I mean, I don't think I did justice to It's a all hard the work. people who. No, It's a different profession. It is. Very. It is a profession with. I have You know, you huge guys- respect ever since that day. It's tough. It is a lot of hard work. It is a lot of. It looks easy from outside, but when these guys do it, they put their heart and soul in it. एक And अच्छी if you बात don't है, have that, एक सवाल की एक अच्छी बात थी, वो ये थी कि उन्होंने उस साइड को ना दोनों हीरोज भी रहे, दोनों मूवीज movies में भी काम किए कर चुके हैं, हैं, बिल्कुल डांस ऐसे भी ही। अच्छा करते। इनको जब वो आपस में भी बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जो दो मेरा हीरोज आपस में आगा बाटा चल रहा था, इनका आगा बाटा चल रहा I था। just got this, I think you got the feeling. We were enjoying it. Very nice, We were enjoying it. Carry I on. want to, ये जरा two shot तो वो जो बनाइएगा। डायलॉग याद करना था, मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। I want एक लफ्ज़ याद करना पड़ता है। नहीं, एक तो you know पूरे ये टू शॉट रखें। अच्छा सुने, मैं सिचुएशन देता हूँ ना आप दोनों। हाँ, दे। लो ठीक है। डायरेक्टर साहब भी आ गए। दो काट सर जो तुसी नहीं तू क्या ना कि उधर मैं आप दो दोनों को है, situation वो भी दे तो रहा इस पास से ही नहीं। मैं आप दोनों को सिचुएशन दे रहा हूँ। जी सिचुएशन ये हाँ वो हम बनाते कि हैं। आप केड़ा लोग season है? आप लोग वही मैं ना वही मैं नहा कहाँ that will be so the situation is that both of you yes are enemies ओके मगर आपको अभी अभी पता चला है कि आप दोनों बचपन में मेले में बिछड़ गए थे हाँ हाँ और आज तक आप दुश्मनी कर रहे थे। अभी जब आप आमने सामने आए हैं तो सीन ये था कि वो एक दूसरे को लड़ने के लिए मारने के लिए आए। उन्हें पता लग गया कि तुरम लेकिन so Wasim, you came to take revenge from Jaddu. But then Jaddu stops you and मैं says, पंजाबी हूँ। हाँ, but Jaddu stops you and says, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ, छोटा भाई जो कुमकुम के मेले में कुमकुम के मेले में घूम कुम गया के मेले में हम लोग बिछड़ गए थे। असिस्टेंट है ठीक है। What the hell are you guys talking about? प्रकार भाई, come on man. यार वैसे फकर भाई एक मिनट रुक जाए यार, आप दोनों एक बात नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੋ रुक के ऐसे नहीं हो सकता कि ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇਨਵੋल्व ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ नहीं मैं आ रहा हूँ यार, रुक के। ओके अच्छा और आप दोनों को रजिया से प्यार है। Oh my आप दोनों both of you have a crush on रजिया। और उनको शो उनको शो इन्वॉल्वमेंट कर दिया। गुंडा ले गया तू Okay, ready? मेरी लड़की की Ready? Wait. Ready? Okay. All right, camera, 2 shot. And rolling and action. तुमने मेरी लड़की को दोबारा देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओए होए भाईजान भाईजान आपको पता ही नहीं એ કેડા પ્યાર હે आपको पता ही नहीं है આપણે બે છે ને કુંભના મેળામાં જુદા થઈ ગયા હતા હું જામનગર આવેલો ગયો ને આપ કરાચી પાણીની ઓલી બાજુ ઓ મેરા ભાઈ क्या है? Well done. નહીં એક્સટેન્ડ કરી દે પણ વ્યાધિ કરોમાં
ઓલી બેન છે ને એ મારી ભાભી છે તમે રાખો मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो भी ये कह रही है हमारी बहन है तुम रखो। समझ आ गई आदमी थे। रजिया ये क्या हो गया तुम्हारे साथ रजिया? ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ And the Oscar goes to ए गुंडा बॉय शरीफ Oh निकले। my goodness me. वैसे ना आपकी ये कल से ना जितनी तारीफें हो रही थी ना शो की बराबर हो गया काम। नहीं, वो नहीं, क्रिकेट से जुड़े हैं भैया। ये लोग देखते हैं ये बहुत भूलिए एक्टिंग के लिए कोई नहीं आता आपके By पास the way, Wasim, I got to tell you, man, you just He got is on outstanding, immediately. man. मैं तो डर गया 2 मिनट से कन्विंस करता कसम से। मैं तो डर गया था ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ जो आवाज बट देखो ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੈਮਰੇ ਇੱਧਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਗਾਰ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ एंगल नहीं देता। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ब्रेक ले ले। नहीं पिक्चरों में We have not, ये dispute आ गया जरा इसको dispute को ठीक करते हैं. You're watching the DP World dressing room movie set. We'll be right back पता after नहीं this किधर break. तक किधर जा रहे हैं। यही रह गया था बस Razia. Welcome back to the DP World dressing room. One actor short. He's just arrived on set. Set पे वापस आ रहे हैं. आ जाए. आजा पीछे रह के गया बैठो। नहीं देखो ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ अरे Okay, Arz Fonzie Deester 9. Hashtag Ask the Room. Your question is, Wasim bhai, can you please tell us your workout routine? गुड वन। Wasim. माई वर्कआउट रूटीन आई थिंक मैं बता चुका हूँ। आई वेक अप, अभी यहाँ से शो से जाऊँगा स्ट्रेट अवे नींद आती नहीं है, सो आधा पौना घंटा कोई नेटफ्लिक्स या कोई टीवी कोई देखा, कोई सीरीज देखी, कोई फिल्म देखी थोड़ी सी, देन आई स्लीप। आई वेक अप एट 6:30, अलार्म लगाया होता है मैंने, एंड देन आई गो गेट माई कॉफ़ी, एक कॉफ़ी पीता हूँ, देन आई गो टू जिम। अभी यही बस सवाल ये वर्कआउट रूटीन. वर्कआउट रूटीन. हाँ, आई डू 1 बॉडी मसल एवरी डे। फॉर इंस्टेंस कल मेरी चेस्ट है तो मैं 5 चेस्ट की एक्सरसाइज करूंगा, एंड आई डोंट टेक अ ब्रेक। आई डू फिनिश माई वर्कआउट इन 35 to 40 मिनट्स टॉप। सो एक सेट किया, टमी किया, सेट किया, टमी किया, सेट किया, लोअर टमी किया। सो विद इन 35 minutes 40, आई डोंट टेक अ ब्रेक, आई डोंट टॉक टू एनीवन, आई डोंट लुक एट सोशल मीडिया, एंड आई जस्ट हैव माय म्यूजिक ऑन एंड आई फोकस and Just done in get that 40-45 minutes. All right, thank you, Arz. I believe everything else apart from one, social media. ड्यूरिंग तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, Khizr 56, you are asking which captain in modern cricket has the best tactical acumen and why? For all the panelists. I think successful captain तो Pat Cummins. The most tactical acumen. I suppose success tactical उसी कहेंगे ना जो जीतेगा. End of the day. Okay. So that for me obviously is Pat Cummins. Okay, for you is Pat Cummins. When people say कि fast bowler कप्तान नहीं बन सकता, उसने वो proof गलत किया है. Okay, Pat for you. Cummins ने वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, वो सब कुछ जीते हैं। अब ये बताएं कि हल्की टीम जो ना, हल्की टीम के साथ किसी ने को बड़ा टूर्नामेंट जीता हो एज अ कैप्टन, वो कौन सी टीम आप समझते हैं कि मेरे को अगर ऐसा अपने ICC के टूर्नामेंट हुआ अपने है? पूरे you know Yeah. जब से देख रहा हूँ तो आई थिंक आई वुड प्रोबब्ली पुट अर्जुन आर टुंगा हाँ, टुंगा, उसमें he because he didn't have the kind of resources. Yeah. In fact, he had the same resources जो उसके पहले कैप्टन थे और उसके बाद थे. Yeah. But what he could get out of players, the way he changed the whole game. फेस ऑफ द टीम। And आज के इस टूर्नामेंट में अगर आप पूछे तो I think you know obviously Rohit Sharma, I love him a lot. But what I saw even from Steve Smith today, you know, you saw short leg लगा दी, नबी के आते ही shot करवाई. So tactical is what you can do with the moment and with the opposition, and you're ready to do something different. Yeah. बाकी तो वही फील्ड लगा के चले रहते हैं. लेकिन इसमें फिर then you have to have a respect of your players. Right. You have to have the understanding with your bowlers also. जैसे अगर short leg लगाई है, अगर मैं as a bowler comfortable नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा यार ये हटाओ मुझे नहीं, I'm not comfortable with. But वो आपको फिर you have to earn that respect So who in with your the bowlers. With you? I think Smithy is very good. Smithy? I think over the years इतना experience है और इतना cricket का उसको craze है ना. Yeah. ठीक है. इतना craze है वो मैंने नहीं, मुझे नहीं याद कि कोई भी बंदा मैंने ऐसे देखा हो कि इतना क्रेजी है। Okay, for I you? think in the recent past, Mahendra Singh Dhoni जिस तरीके से how he built his team and how he went about things, fought for the boys जो पता चलता है. Nice. And currently Rohit Sharma how he goes about things, because लड़कों से बात करते हैं, he's
earns a lot of respect in that dressing room. All right. YouTube बहुत सारे ये भी राम जी का मुझे हमें एक्स पे आया है कि आप एक दूसरे को काटते बड़ा हैं यार, इतनी गलतियां क्यों निकालते हो? हम आपस में हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप लोगों को क्यों लग रहा है? हम काटते कई दफा इसलिए हैं कि हमारी उम्र में कोई चीज भूल जाता हूं, मैं लिख लेता हूं, तो कई दफा काट लेते हैं एक दूसरे को. इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, सो डोंट टेक सीरियस. लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए. Also, I think और हमें भी ना ले. I think another thing that we are trying to जो हम emulate करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इस space के अंदर is that we try to keep this as if few friends are sitting together and having a conversation. When you're having conversations with your friends, somebody is talking over the other person, somebody is engaged in a different conversation. That's the environment that we're trying to create in the dressing room. Right, Janab, YouTube questions. Harsh Singh 22133, your question is for Wasim Akram. Wasim Akram, can you name 5 greatest cricketers of all time across formats? It's very difficult to pick. You have to do my homework. I have to sit down and plan it. अगर straight away आप पूछ देंगे पहला नाम तो आएगा सर विवियन रिचर्ड्स का. एक दिन ले लो मेरा, एक दिन कब इसको कल पे डाल लेते, सवाल ले लें. ठीक है. You think about it, everyone, and then because let us all think कि कौन 5 क्रिकेटर हैं जो मेरे लिए बेस्ट हैं. Second question from YouTube is Mustafa Umar -Y4F. You are asking #Ask the Room. My question for the panel is: do you think in today's era of commercialization, players tend to be more focused on league cricket than national duties? This kind of issue has been found in football as well, where players tend to play for club before country. What can be the best approach to limit players to play a certain threshold of league cricket, keep their national team as priority? Love the show. I've been watching for 4 years now. Keep up the excellent work. All right, guys. यार पीसीबी ने तो लॉ बनाया हुआ है कि 2 लीग्स की इजाजत मिलेंगी. I think that's including PSL as well, if I'm not mistaken. Yes. And one more league, Vicky, you would know. Yeah. तैनू पता कि ये यहाँ से हर गलती करने पर भी पता. अच्छा आगे करो. That kind of pretty much summarizes the situation at PCB, doesn't it? No, generally speaking. I mean, if you look at, because the question is, you know, football versus cricket. अगर आप देखें तो football में, I think the countries don't play as often also. I think they've accepted the sport itself, or the body that runs, have accepted that, you know, the club cricket, club football is at a higher level because you get the best players in the world to play. And then the World Cup happens every 4 years. Because I don't know, I'm not, you know, very knowledgeable about football, but I think bilateral football is something that you don't hear. Very rare happens. Yeah. So I think maybe we are in that transition phase. You know, I won't be surprised in 10 years' time that we will only have World Cups and not have bilateral. Okay, last question I'm taking. This is again from YouTube. Budget Traveler 13 आपने पूछा है #Ask the Room में from Wasim, but I'm going to leave it on the floor for all of you to answer. Why are subcontinent people so emotional about cricket? We don't see people from SENA countries being so emotional. I think it's the culture. It's the culture. Yeah. It's the culture. Pakistan is one sport kind of a nation we are. We used to have amazing sports, squash, hockey, and now it's just cricket. And maybe, of course, they're emotional. We are emotional people. Same goes for India. Yeah, because there is culture, there is history, there is some roots that you have, and then you are emotional. Whereas the SENA countries, a lot of countries, people who live there now have gone there a generation ago or 2 or 3. Whereas all of us, wherever we are from, you can trace your roots back. So there is a emotional bond that. But England cricket was generated भाई इंग्लिश कौन रहता है इंग्लैंड में अब? नहीं फिर भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहते. लीड्स चले जाओ, you know, लेस्टर चले जाओ, गुजराती में साइंस है वहाँ. All right, folks. With that, it's time to declare a winner. And so, Saira Adnan Zafar को तो हमने वैसे ही एक बॉल प्रॉमिस कर दी थी because of her son. She deserves it. So one ball is going to her now. The second one, we have had different questions. Abbas Babar, Atul Jha. Atul Jha वो हैं जिसने कहा था कि best host. ले Best host. Atul, good man. अतुल झा जी, आपको मैं इतना बता दूं कि आपको यहाँ से बॉल मिले ना मिले, फकर साहब आपके घर पे जरूर बॉल एक डिस्पैच कर दें. अच्छा जी, Khizr had best captain, tactical captain question. I think that was a good question. Abbas Babar sent us that question earlier. उन्होंने वो भी भेजा था वो जो heavyweight announcements सारी की सारी. So yeah, guys, who do you think?
Abbas Babar does watch a lot of shows, Yeah. so he question रोज लिखते हैं, उनको दे दें आज आप. दे दें? Yeah, दे दें. All right, Mr. Abbas Babar, congratulations. मेरे को दूसरी साइड अच्छा, ऐ तू बस खूब कर दे हो. एक मिनट रुक जाओ. सिलेक्शन कमेटी की तरह है, चेयरमैन तो एक बंदा मिल गया, नहीं नहीं तुम जाओ फिर वो मेरे लांदे क्यों हो? मेरा सवाल है कि मेरे आओ ही ना हो. आगे आगे मैं नहीं दसता जाओ. खेलते हुए भी इंज करता ये 5 रुस जाता सी. Really? हाँ, big time. बहुत रोशन डांट हुआ देने के था. फायदा किएगा. नहीं नहीं आप क्यों मैं इसका नाम रखा हुआ था हमने रोशन नोवा. रूसनोवा हाँ, पंजाबी में कहते हैं रुस बड़े गया. बड़े नाम थे. बाहर ग्रीन रूम में आमद भी बताता हूँ. Ooh, ouch. नहीं, मैं नहीं आता. All right, so Abbas Babar or anybody else? Just get on. Yeah, with it. that's fine. Yes? Yeah. You sure? Absolutely. I'm not sure, but Wait, you're not- निखिल से पूछ. Nikhil, I'm good. all right. Baba's good. Yeah. जद्दू पाजी मैं तो हमेशा मेजोरिटी के साथ जाता हूँ. जिथे दी हवा उथे दी पतंग. यही सीखा है, जिधर गिरा उधर को लिख लो. ये मोइन खान के अजीम अल्फाज हैं हाँ. जो हमें उन्होंने बताया. देखो हम निखिल जिधर की हवा उधर के निकल लो. उधर के लिए निकल. उधर ही निकलो. All right, guys, we're going to take a break. When we come back, we'll do some more deliberation in this break. See you on the other side of the break. All right, welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Alam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. And it's been quite a day here in the DP World Dressing Room. We talked about the Afghanistan-Australia game. Unfortunately, the game got washed out, but we did get a really good Lollywood-Bollywood fusion movie out here between Ajay Jadeja and Wasim Akram. क्या एक्टिंग की यार दोनों ने यार, क्या आप दोनों नेचुरल्स हैं दोनों के दोनों. बिल्कुल. क्यों वकार? ऐसे ही था ना? हाँ जी बिल्कुल. ऐसे ही है. All right, in the break. I've never seen Waqar Yunus so compliant. Totally, absolutely submissive. भाई मेरा बेटा बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो मुझे ख्याल करना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. All right. Folks, let's take a look at what we have in store for you in the ICC Champions Trophy tomorrow. It's another game, and this is the game that is coming out to you tomorrow. It is South Africa versus England, and it is from Karachi tomorrow, where the weather should be good. South Africa versus England. It's going to be an interesting contest to watch because we are now trying to determine what are the first and the second teams to who's going to play who in the semi-finals. And so with that, we're going to be back here 12 noon Pakistan Standard Time, and whatever time zone you're in, you can tune in. And of course, you can watch us on YouTube. Of course, unfortunately, not live. Question on YouTube, एक बहुत सारे लोग कहते हैं आप इतनी देर से क्यों करते हैं? There is a lot of post broadcast edit that has to be done for us to actually upload it, and we want to load it in high quality, so it takes time to upload this. And number two is that a lot of people say, why do you freeze frames in the YouTube video? That's primarily because digital rights are separate to broadcast rights. When we do this show, as you see it, this is going live on television channels. But when we put it on YouTube, we do not have digital rights. Therefore, we cannot show you the actual video footage that we are using here in the studio. So we have to use stills, and that's how it all goes down. With that, I'm going to say that we congratulate Abbas Babar. You're getting the signed ball. That one more signed ball, which has been done. So, Abbas Babar, congratulations. This is going to be dispatched to you by DP World, and our team will get in touch with you. And with that, I'd like to thank all our panelists here. Thank you, Nikhil. Like always, fantastic and outstanding. Waqar, thank you so much. Thank you. Thank you for bearing you. And thank you for being so supportive in everything. Good. Keep Love bearing. you, man. Love you. All right, love you too. और आप दोनों शाहकारों का बहुत बहुत शुक्रिया. आज आप दोनों Thanks ने for क्या coming. जबरदस्त किस्म जबरदस्त किस्म की आप लोगों ने जो है ना फनकारियां दिखाई. सुपरस्टार आए हुए थे. देखिए आपने हमारी तो फनकारी निकलवा ली, अब रैप किस दिन होगा? क्योंकि ये जो बच्चे देख रहे हैं, हाँ, खत्म कर नहीं वो टाइम आ गया जनाब. बेकार नहीं हो रहा है, टाइम आ नहीं, गया. क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये नहीं पता ना, आप 30 साल पहले 40 साल पहले पाकिस्तान में रैप किया करते 40 साल थे. पहले पैन सीधा मोंजेडारो क्यों नहीं पाते थे? मतलब 30 साल नहीं बनता है ये नहीं जुरासिक पार्क में रैप किया था मैंने. ये वो नहीं हो- टी-रेक्स के साथ मैं ही खड़ा था, रैप करता हुआ जा रहा था. कम ऑन मैन यार, कितने साल हो गए? जड्डू पाजी, ये नहीं हो सकता कि आप एक्टिंग करें और ये रैप ना करें. ये होएगा ये अगले 4-5 दिन. होगा एक दिन ना. इंट्रोडक्शन
या रैप एंड करेगा अरे यार चले. All right, so we're going to say thank you very much, and I'm going to leave you with these words of wisdom. Come on, everybody, आओ पंगड़ा पाओ, पंगड़ा fashion है, आओ नच गाओ, put your hands up in the air with me. नाल सोनी जी कुड़ी हो from Lahore is the city. भाजी आओ मेरे नाल तू सुई, you got the wheel put the पंगड़ा fashion free. और मैं rapper Sam है मवी, और मैं पंगड़ा jam जी. तानु की है मालूम के है पंगड़ा की. It's in the heart of the people of Punjab, the cities. I'm a भंगड़ा addicted human being. Without भंगड़ा जी ना है मुश्किल extreme. With that, it bit Gulkan. Good night. All right, guys. Well done. तो 5 दिन के